علاج کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن فری کورٹ نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے اس چیز کے لیے، وقف کر دیا ہے اس چیز کے لیے کہ دنیا کراچی کے علاوہ سندھ کے علاوہ آپ کسی بھی ملک کے حصے سے آئیں تو وہ مفت کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹارگیٹڈ فسٹولا کو ایز اے انہوں نے اپنا ایجنڈا اٹھایا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم اس کو ٹریٹ کریں گے۔ باقی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سول اور جنا میں نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا، سول جنا میں بھی ہوتا ہے بات۔ اور یہ جو 18 سال سے کم عمر کی شادی کی بات ہے، اس کا مین ریزن یہ ہے کہ بچیوں کی ہڈی جو ہے نا پیلوس کی وہ بنتی نہیں ہے، جب وہ بنتی نہیں ہے 18 سال سے کم عمر کی لڑکی کی آپ شادی کریں گے تو بچے کے پھنسنے کے چانسز اور obstructed لیبر کے چانسز نارمل ڈیلیوری میں بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس بچی کو ذہنی شعور کی بات تو الگ ہے، لیکن جسمانی طور پہ اتنی میچورٹی ہو کہ وہ ایک بچے کو ڈلیور کر سکے، اس لیے 18 سال سے کم عمر کی میں ایک بات کہنا چاہوں گی، آپ نے کہا کہ سول ہاسپٹل یا جنا اسپتال، مجھے یہ بتایا کہ پاکستان میں ریسرچ کتنی ہوتی ہے، اس پہ کتنا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، جب ہوتا نہیں ہے تو یہ ایسٹیمیٹڈ رہتا ہے، یہ کوئی 100% نہیں ہے، کوئی لوگ آپ کو بتائیں گے چھوٹے چھوٹے سینٹر جس میں یہ کام ہونا چاہیے اصل میں عورتوں کے جو مسائل کے لیے، وہاں بیسک یونٹ کو آپ نے دے دیے، پیک کیے، آپ نے پرائیویٹ کر دیے، جب پرائیویٹ کر دیا تو پھر آپ کیا فیسلٹی دیں گے، گورنمنٹ کیا کرتے ہیں، کتنی گورنمنٹ سے ہے اس مسئلے میں، کسی بھی مسئلے میں نہیں۔ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ پریونشن سے بیٹر دین کیور، مطلب یہ ہے کہ پریونٹ کریں آپ، مسئلہ ہونے کے بعد اس کا علاج کیا، ہم راحت بیسس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم بیسیکلی اس کو روٹ کاز کو ایڈریس ہی نہیں کرنا چاہتے جو گورنمنٹ کر رہی ہے۔ گورنمنٹ کا بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں، کہیں بھی جو ہے کسی میں بھی کوئی آپ کو ریویو میں نظر نہیں آیا تھا، آپ کے پاس میں نہیں آیا ہوا۔ ہمارا کام ہے، ہم ایز اے این جی او، ایز اے ایسوسیشن ہمارا کام ہے کہ ہم آواز اٹھائیں، ان کو بتائیں کہ خدا نہ کچھ ہوش کا نہ پڑے، اور یہ جو مسئلہ ہے کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ خاندانوں کا مسئلہ ہے۔ ایک عورت اگر ایک فیملی کے اندر اس طرح کی بیمار ہو جاتی ہے تو پورا خاندان سفر کرتا ہے، تو ان کو جو بچانے کے لیے ہم آ گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں گورنمنٹ کو بھی لے کے آئے تو یہ ہمارے لیے اتنا ممکن ہے۔ ایک چھوٹی سی ہماری خبر مکمل نہیں ہو رہی کپور بھائی جی، صرف یہ بتا دیں یہ تو 12,700 کیسز بتائے ہیں کہ آپ نے 2005 سے اب تک بھی بتائے، اس سال کے داد و شمار دے دیں۔ دوسرا ہے کوئی بورڈ کی بات کر رہا ہوں، فیصلہ کے حوالے سے نو ڈاؤٹ بہت اچھا علاج ہو رہا ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اس سال کا مجھے ڈیٹا دے دیں کہ کون کون سے علاقوں سے لوگ فیصلہ کے لیے خواتین آئی ہیں، ان کو کیا کیا مسائل تھے، کوئی سکسیسفل اسٹوری کی تھوڑا سا بتا دیں۔ لیکن ایک بات میں کلیئر کر رہا ہوں، ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، جیسے بھی کوئی بھی دن منایا جاتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس ایشو پہ، اس مسئلے کے پر آگہی پھیلائی جائے، اویئرنیس ریز کی جائے۔ ہمارے یہاں مسئلہ ایک بہت بڑا یہ ہے کہ بہت ساری باتوں پہ بہت سارے ایشوز پہ ہم بات کرنے تک تیار نہیں ہیں۔ عورتوں کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے اس کے بارے میں بات کرنا لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک نیچرل بایولوجیکل فزیولوجیکل پروسیس ہے جو قدرتی طور پہ ہر عورت کے جسم میں موجود ہے، اور اس کے مسئلے ہوتے ہیں اور اس پہ بات کرنا ضروری ہے۔ یہ پہلی بات میں یہ کہوں گی کہ یہ عام طور سے دن جب ہم مناتے ہیں کوئی دن تو وہ دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ فسٹولا ڈے کو ہم سیلیبریٹ اب تک نہیں کر پائے، حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ پچھلے مور دین 2 ڈیکیڈ سے زیادہ ہو گیا ہے۔ کوئی کا بنا تھا یس، اور میرا تھا وہ اس سے پہلے سے ڈاکٹر شیرشاہ سے رہا ہے، کیونکہ عورتوں کے صحت کی بات ڈاکٹر شیرشاہ پہلے بھی کر رہے تھے اور ہم لوگ جسمہ کی طرف سے بھی بہت سالوں سے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کے حقوق کی بات، سماج میں عورت کی حیثیت، عورت کا درجہ، عورت کی زندگی کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی جب تک ہم اس کی صحت کی بات نہ کریں۔ تو دردناک اور افسوس دن یہ ہوتا ہے کیونکہ اب تک ہم اور پاکستان میں فسٹولا پتہ
ख़त्म नहीं कर पाए, जो कि पिछले 25 साल से हम लोग सब लोग कोशिश में लगे हुए हैं। तो पहली बात जो आप लोगों को बिल्कुल समझ लेनी चाहिए वो ये है कि ये ऐसा सिलसिला है, इसको जैसे आपने कहा ये इसको डिजीज नहीं है, ये एक कंडीशन है जो कि गुर्बत की वजह से औरतें सफर करती हैं। आम कहीं बहुत ही कम देखा गया होगा कि कोई अमीर औरत को फिस्टुला हुआ, और खास तौर से ये गरीब मुल्कों में ही देखा जाता है। ये वेस्ट में अब बिल्कुल वाइड इरेज कर दिया गया है। कोई औरत को कभी सालों में कभी एक कोई केस हुआ है कि फिस्टुला, विजाइनल फिस्टुला या हुआ हो, तो ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये नहीं है कि हम जानते हैं कि हर रोज तकरीबन 3 औरतें फिस्टुला से सफ़र कर रही होती हैं। क्योंकि अगर ये केसेस कहते हैं कि नए केसेस आते हैं तकरीबन 5000 तक एक साल में, तो अनदीज़ रिपोर्टेड। माइंड यू हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे रिपोर्ट आम तौर से औरत के वसाइल नहीं किए जाते। इस हद तक कि हम ये भी कहते हैं कि जब औरत को कत्ल कर दिया जाता है वो भी बहुत कम रिपोर्ट होता है। अगर 10 कत्ल हो रहे हैं तो उसमें से 4 रिपोर्ट होंगे और दूसरे नहीं होंगे। तो आप ये जहन में रखें कि अगर रोज़ाना 3 औरतें फिस्टुला से सफ़र कर रही हैं तो कितनी बड़ी तादाद है औरतों की। दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उसकी एक बहुत अहम वजह ये भी है कम्युनिकेशन, चाइल्ड मैरिजेस, और इस पे भी हम आमतौर से बात नहीं करना चाहते क्योंकि हम जानते हैं कि कौन ये चाइल्ड मैरिजेस को प्रमोट करता है और ये बढ़ाता है। ये पूरा फ्यूडल कल्चर है, ये ट्राइबल कल्चर है, ये हमारा जो करप्ट मर्दाना निज़ाम जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्की का निज़ाम वो है। तो आप जी हाँ सब आप कह रहे सवाल जी, बस 2 मिनट की बात और कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ ये आप तक पहुँचना ज़रूरी है कि ये गुर्बत की वजह से होता है। और आखिरी बात अगर कह रहे थे सवाल जवाब ज़्यादा होने चाहिए, तो ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि जब तक हम माशरे के तौर पर अपनी सोच औरतों के बारे में नहीं बदले, मेरा स्लोगन ये है कि विमेन्स लाइव्स मैटर, हमारी जिंदगियां भी अहम हैं, और ये चीज़ जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक औरतों के मसले खासतौर से सेहत से रिलेटेड मसाइल जारी रहेंगे। तो इसको तब्दील करना ज़रूरी है क्योंकि ख़वातीन की ज़िंदगी अहम है। थैंक यू। हम मीडिया के दोस्तों का, क्योंकि इसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसमें एक्चुअली चीज़ क्या है, अताई जो हम दाइयाँ हैं वो जो खास करके जो पहला बच्चा होता है उसमें ये प्रॉब्लम आता है और उनसे वो ट्रीट सही नहीं हो सकते हैं। वो केसेस में बाद में ये देखते हैं उस पर या तो हमारा जो पेशाब का बरसाने वाली जगह उसके लिए क्या होता है या हमारा पकाने वाली जगह, उसके बाद उस औरत की जिंदगी तो खत्म हो जाती है, मतलब माशरे में वो खानदानों के भी झगड़े हो जाते हैं जो एक की वजह से। उसके लिए हम पहली बात तो ये कि मीडिया के थ्रू ये मैसेज जाना चाहिए कि हम जो डॉक्टर साहब ने कहा कि हम ये है, ये तो गवर्नमेंट का काम है कि वो सेंटर्स को वेल एस्टेब्लिश करे कि वो गेस्ट वहाँ आ जाए। उसके लिए आप लोगों का ताउन बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो ट्रीटमेंट हो रही है, जो सहरा जो शेरशाह साहब ने उठाया है, वो पता नहीं कितने खानदानों को सेफ किया है अल्लाह की मदद से। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों का और हम सब पे ये फर्ज बनता है कि हम इन पे बहुत काम करें और खुदा की खिदमत समझें। Is her right, and investment in fistula childbirth injury, इस थीम को लेते हुए और मीडिया के साथी जो है मौजूद है, इनके तवज्जुह से हम यूएनएफपी की बेसिकली 3 आपसे हम चाहते हैं मदद कि आप हमारी मदद करें
खर्चा आता है, एक तो खर्चा जो कॉस्ट है दैट इज ऑन अ पेशेंट, उसके साथ साथ जिस तकलीफ से औरत को गुजरना होता है, आपने बात की कि फिस्टुला जो है ट्रीटेबल है, फिस्टुला प्रिवेंटेबल भी है और ये सिर्फ नेग्लिजेंस की वजह से होता है। तो इन द फर्स्ट प्लेस प्रिवेंशन पे बहुत ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है और इस फोरम के तवज्जुह से हम चाहेंगे कि मीडिया जो है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करे कि प्रिवेंशन पे इन्वेस्ट होने की नीड है। मैं आखिर में ये कहना चाहूँगी कि जब हम प्रिवेंट करते हैं फिस्टुला को, इसकी रोकथाम और ट्रीट करते हैं, तो हम सिर्फ उस एक औरत की ज़िंदगी को ही नहीं दिग्विजय बराबर करते, बल्कि हम खानदानों को रिस्टोर करते हैं, फैमिलीज को। और अनपेड वुमेन जो है वो अपनी कम्युनिटी में जाती है, कम्युनिटी में जाके वो वर्क फोर्स में एंटर करती है। जब वर्क फोर्स में एंटर करती है तो वो कंट्रीब्यूट करती है सोसाइटी में, और इस दौर में मर्द और औरत या तमाम जेंडर्स का वर्क फोर्स में कंट्रीब्यूट करना उतना ही ज़रूरी है जिस तरह आपको और हमारा सांस लेना। साथ ही साथ हेल्थ सिस्टम की बात हो गई और एज UNFPA वी आर वेरी प्राउड कि हम यहाँ सिंध में तमाम साथियों के साथ शामिल हैं कि इस मोमेंटम को हमने कंटिन्यू रखा हुआ है और आई एम ग्रेटफुल दैट इस पार्टनरशिप के साथ हमने जहाँ पर कुछ डेंट्स क्रिएट किए हैं वहाँ मज़ीद हम इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में जहाँ पे फंडिंग के चैलेंजेस हैं, जहाँ पे सोसाइटी और जब हम औरतों के राइट की बात करते हैं शरीक होती जा रही है, उसमें हम स्टिल उम्मीद की रोशनी दें। बहुत शुक्रिया। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड वेरी प्राउड कि हम जोर हॉस्पिटल के साथ और पाकिस्तान नेशनल फोरम गवर्नमेंट हेल्थ के साथ मिलकर कई सालों से फिस्टुला के हवाले से जो आगाही है और उसकी ट्रीटमेंट पर काम कर रहे हैं। इन 2 तिहाइयों में जो काम हो रहा है, जो मैरिज उनको जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक ये मसला नहीं होगा और ब्रॉडबैंड जो एक किस्म का क्रैक डाउन नहीं होगा, तो तरीके जितने भी ऑपरेशन उनको बंद नहीं करेंगे तब तक ये मसला आ जाएगा। तो सिंपल से 3 चीज़ें हैं, अगर उन पर अमल करें तो मेरे ख्याल में ये बहुत सा जो मसला है हल हो सकता है। मेरा नाम सोनिया नरती है, मैं प्रोफेसर हूँ गायनिकोलॉजी और फिस्टुला का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। उस हिसाब से आपने बहुत अच्छा बताया और हमारे बहुत सारे अस्पताल इसमें मैं स्विफ्ट ही नाम लूँगी, पूरी गोल्ड हॉस्पिटल का जहाँ पे इसका इलाज मुमकिन है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे प्रिवेंशन की कि इसकी एहतियात कैसे की जाए। तो मसला सिर्फ ये है कि अगर एक हमला औरत को बर वक्त डिलीवरी के टाइम पे अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का हो जाए, उसका बेबी फंस जाए, तो प्रेशर की वजह से ये मसाने में या रेक्टम में उसकी सुराख हो जाता है और ये ट्रीटेबल कंडीशन है। लेकिन अगर यही औरत बर वक्त रेफर की जाएगी तो ये केस होंगे ही नहीं। लेकिन ये सिर्फ हमारा मकसद यहाँ पे ये है कि हम जनरली आगाही को फैलाएं और हम अपनी लेडी हेल्थ वर्कर्स को भी ये बताएं कि वो बर वक्त उस पेशेंट को रेफर करते हैं अगर वो केस नहीं हो रहा है, तो अगर उसका सिजेरियन हो जाए तो वो इससे बच जाएगी। सिर्फ ये है कि प्रिवेंशन इसकी पहला स्टेप है और दूसरी बात ये कि अगर किसी को हो गया है तो उसका इलाज मुमकिन है। थैंक यू वेरी मच। हमारे पास पहुंच सकती है इलाज के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना एक आम आवाम के लिए भी, ताकि अगर ऐसी कोई पेशेंट उनके पास अवेलेबल है तो हमारे पास रेफर कर सकें। और अगर आपको फिस्टुला के लिहाज से, सर्जरी के लिहाज से कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। ये स्मॉल सा होल होता है और इसको सर्जिकल इंटरवेंशन से 2-3 स्टिचेस लगा के बंद किया जाता है और पेशेंट उसके बाद बहुत अच्छी अपनी लाइफ गुजार लेती है। इससे पहले आप सोचें, अगर पेशेंट के पास से पेशाब और पखाने की स्मेल आ रही होती है तो उसको सोशली कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, उसकी फैमिली, हस्बैंड, इवन घर वाले, तो पेशेंट के लिए कितनी मिजरेबल सिचुएशन है।